So here is something. वहाब साहब आप ही बताएंगे कि इनमें सबसे इनमें टॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट कैमल अगर आप आइडेंटिफाई कर दें तो you know that will help us move on. और मैं आपको बताऊंगी हमें क्यों जरूरी है ये कैमल ढूंढना. Either the tallest one or the smallest one. I think at right corner, first is smallest. This one? Yes, ma'am. How about this one? Yes, ma'am. And how about this one? Okay, fine. So what you see, the camels actually are not the camels. They are the shadows of the camels. If I just help you look at camels, these are camels, the ones here that you see. These are camels. These are camels. And the tallest black camels, the tall black camels that you see, they are just the shadows. This was a photograph actually taken from a certain angle, and it was an aerial view of the herd of camels, and that was the sunset time, and the shadows were larger than the camels themselves. ऐसा होता है ना शाम को कभी आपका साया आपसे बड़ा हो जाता है. Exactly, ma'am. Okay, so you see, everything that we see is not what the reality is. So मैं start इसी picture से इसीलिए करूँगी कि you know we teachers we have to handle other human beings, the youth, and we have to impart is the word I always put in quotation marks. I don't know if you impart or we just help them learn. So we are trying to impart certain level of knowledge and skills to these other people, but then अगर हमें उन्हें पढ़ाना है और अगर हमें उन्हें हैंडल करना है और हम उनके साए देख रहे हैं, उनकी रियलिटी नहीं देख रहे हैं, I'm generally saying कि हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी reality is not clear to us, or is a little deceptive, or maybe it's a little misleading, तो हम ना वो solution उस problem को सही कर सकते हैं, ना हम उन students को knowledge सही तरह से impart कर सकते हैं. तो हमें बहुत carefully देखना होता है कि what we see is exactly what it is. जो हम देख रहे हैं वो reality है या वो reality का shadow है. हम में से बहुत से लोग हम teachers, I said like I'm a lifelong learner, but definitely I have remained a teacher. मैंने play group से PhD तक को पढ़ाया है और मैंने play group से PhD तक के teachers को train भी किया है. और मैं खुद एक humble teacher हूँ और मुझे लगता यह है कि बहुत सी चीजें हम प्री-डिफाइन कर लेते हैं, बहुत सी चीजें हम परसीव करते हैं और फिर जो जिस तरह से हम परसीव करते हैं रियलिटी को, we take certain measures. हम कुछ एक्टिविटीज उस तरह की करते हैं जिस तरह की रियलिटी हमें नजर आती है उससे अलाइन करके. इसी तरह से हमें प्रॉब्लम जिस तरह से नजर आती है हम उसका सॉल्यूशन उसी तरह ढूंढने की कोशिश करते हैं according to what we see. But again, if we do not see the reality, then the measures that we take, or the activities that we do, or the processes that we undertake, they all might fail और हमारा outcome achieve नहीं होगा. So outcome-based education, basically, जो आपने मुझे 6 levels बताए Bloom's taxonomy के, हम उनको mind में रखते हुए आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि how are those areas linked with outcome-based education. So we move on from here, keeping the thought in mind that whatever we see is not reality और हमें बाज़ का चीज़ को एक और नज़र से एक phenomenon को देखने की ज़रूरत होती है. To all my dear teachers, I would request कि एक थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाएं कि आपके पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है. आप क्योंकि आप हर एक लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग वो होती है जिसमें हम रेडी हो टू अनलर्न समथिंग फ्रॉम द पास्ट, नहीं तो वो लर्निंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती. We build learning on the previous learning. जब हम कहते हैं बच्चों के बारे में that you teach the students and you link your concepts with the previous concepts that they know, but at the same time, some of you might realize
कि बच्चे को तो पिछला कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है, पहले मैं उसको ठीक कर लूं, So unlearning is very necessary. For adults it's even more necessary, क्योंकि हम 10, 20, 40 साल का एक्सपीरियंस साथ लेके आए होते हैं, कॉन्सेप्ट्स वो पुराने जो हमारे साथ रह रहे होते हैं, और दे लुक सो डियर टू अस कि हम बहुत मुश्किल से उन कॉन्सेप्ट्स को पीछे छोड़ते हैं। तो हमारी हर चीज अगर पिछली ही लर्निंग पे और टीचिंग पे और कॉन्सेप्ट्स पे बिल्ड होती है, तो वो हमें नई जो राहें हैं उनको एक्सप्लोर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। So what is learning? I thought मैं आप लोगों से आंसर्स लूंगी, लेकिन we will just move on. What is learning? और learning जो है वो किस तरह से, how does it take place? I just talked about जब आज से 20 साल पहले मैं नई टीचिंग फील्ड में आई थी और एक ट्रेनिंग कोर्स किया था, तो हमें जाहिर है सबसे पहले एक चीज बताई जाती है कि whenever you teach something, always base it on the previous learning, और आपको भी हमेशा हम यही कहते हैं, that's very important. So contextualized in the previous learning, ताकि बच्चे के लिए इजी हो जाए वो कनेक्ट करना पिछले कनेक्शंस के साथ। But then there are also people who believe कि आप इम्पार्ट नहीं करते लर्निंग कंस्ट्रक्ट करता है एक लर्नर खुद, उसके अपने माइंड में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पिछले। अब इस सारे वाइल में आप आउटकम का वर्ड जहन में रखिएगा। सो ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स जो वो बच्चा लेकर आपकी क्लास में आया है, आप एक ही सेंटेंस अगर बोलेंगे तो उसको 10 डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि उन 10 के बिल्डिंग ब्लॉक्स पीछे डिफरेंट तरह से प्लेस हुए हुए हैं उनके माइंड में। सो उन्होंने अपना एक स्कीमेटा बनाया हुआ अपने माइंड में, और जो भी आप बात करेंगे उसको रिलेट करेंगे विद देयर ओन स्कीमेटा, जो कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हुई है ऑलरेडी। Similarly, there are people who believe कि लर्निंग तो ट्रांसफर की जा सकती है। लर्निंग इज मोर लाइक it's a knowledge, it's a statement of facts, और जिस तरह फैक्ट्स ट्रांसफर कर सकते हैं, आप लर्निंग भी ट्रांसफर कर सकते हैं। I'm only giving you different views. On the other hand, there are other people who believe that learning takes place in a very connected manner, in a very organized manner, और उसके लिए आपका एक conceptual framework होता है which is always playing its role, और एक conceptual framework आपने cognitive domain की फॉर्म में भी देखा, Bloom's taxonomy जिसको आप कह रहे हैं। So ये जो 4 answers मैंने select किए, basically these 4 answers they reflect different schools of thoughts. Cognitive school of thought है, constructivism है। So I'm not going to get into details. As teachers आप खुद इसको स्टडी कर चुके होंगे, नहीं तो इसको खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि लर्निंग थियरीज क्या होती है और लर्निंग टेक प्लेस कैसे करती है। So actually this is the gist of all those 4 different major learning theories. तो अगर लर्निंग को हमने कर लिया तो फिर पेडागॉजी क्या होती है, ये इसमें मुझे आप लोगों में से किसी का जवाब चाहिए होगा, एटलीस्ट वन आंसर। व्हाट इज पेडागॉजी? ओके, ये लफ्ज है पेडागॉजी। तो पेडागॉजी जो है, ये आपने देखा है पेडियाट्रिशियंस होते हैं जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, तो सबको पता है ना। तो पेडागॉजी में जो पीड है ये बच्चों से रिलेटेड है, और जो गॉजी है वो लर्निंग और टीचिंग से रिलेटेड है। तो ये जब हम बच्चों को, या लाइक जो एडल्ट्स की लर्निंग होती है वो एंड्रोगॉजी में चली जाती है। तो हम इस वक्त सिर्फ स्कूल टीचिंग की बात कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चों को हम नॉर्मल एजुकेशन दे रहे होते हैं। सो पेडागॉजी है क्या? थैंक यू वेरी मच, दोनों रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे थे। हम देखते हैं कि ये क्या है। यूजुअली एक एकेडमिक फॉर्मल सेटिंग में जो टीचर स्टूडेंट का एक कॉम्बिनेशन बनता है, क्लासरूम के अंदर है, उसमें एक सिलेबस है और वो सारी चीजें उनको पढ़ाने के अमल को एक कंप्लीट प्रोसेस, एक कंप्लीट जो सिस्टम है वो पेडागॉजी है। कुछ लोग समझते हैं कि आर्ट, साइंस, प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, जिस तरह से आपने अभी कहा, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग, कि सिर्फ नॉलेज नहीं, इसमें स्किल्स भी देनी होती हैं। मगर there are others who believe कि a highly complex blend of theoretical understanding and practical skills, जब तक आप इन दो चीजों को कंबाइन नहीं करते, आपका जो टीचिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता। तो पेडागॉजी में आपका लेसन प्लान बनाना, जो भी चीजें आपने पिछले 1-2 दिनों में पढ़ी हैं या आपने उसको रिवाइज किया है, रिव्यू किया है, क्योंकि ये वो चीजें नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, या फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं, पढ़ने का भी नहीं, आई नॉट यूज द वर्ड फॉर द टीचर्स, बट ऑल दीज थिंग्स दैट यू डिस्कस,
यू एक्चुअली रिव्यू, क्योंकि आप जब पहले दिन टीचर बनते हैं उस वक्त से लेकर एंड तक आप जब आप आज बैठे हैं तो कई दफा ये लफ्ज आप सुन चुके होते हैं, उनको रिव्यू कर रहे होते हैं, रिवाइज कर रहे होते हैं, कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, उनको अनलर्न करके कुछ चीजों को रिप्लेस कर रहे होते हैं. So everything that is involved in the teaching learning process, आपका स्कूल जहाँ पे आप हैं, जिस हॉल में आप बैठे हैं, आपका ये ट्रेनिंग सिस्टम, आपके असेसमेंट सिस्टम, everything is part of pedagogy.